Sir, I beg to move clause 19, which runs thus. No property, movable or immovable, of any person or corporation, including any interest in any commercial or industrial undertaking, shall be taken or acquired for public use unless the law provides for the payment of compensation for the property taken or acquired and specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined. सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं एक संशोधन पेश करना चाहूंगा कि खंड 19 में मुआवजे से पहले शब्द उचित जोड़ लिया जाए. Sir, when we are acquiring landed property from a zamindar, we need not pay as much as he wants. We need pay only what is reasonably required to enable him to maintain himself and his family for 1 or 2 generations. But if a poor man's property is acquired for a particular purpose, the government must pay him cost of the land and something more even. And once you acquire land, you must see that the tiller of the soil is made the owner of the land. Then alone will we be able to give encouragement to the toiling farmers and make them increase the produce and the national wealth. अध्यक्ष महोदय, इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर. इससे तो इन मुट्ठी भर जमींदारों को फायदा होगा और देश के करोड़ों गरीबों और भूमिहीनों के सामाजिक न्याय का सपना टूट जाएगा. सभापति महोदय, संशोधन में शब्द मुआवजे के साथ शब्द उचित जोड़ने की मांग की गई. हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने देशवासियों के साथ द्रोह किया, गद्दारी की और इस सिलसिले में बड़े बड़े इलाके पाए. जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहते हैं. जस्ट कंपेंसेशन. Does it mean that where property is to be acquired for public use, compensation should be paid, or that property should not be acquired except for public use and then compensation should be given? And if the government makes a tenancy law, is that public use or not? मान लीजिए सरकार कनॉट प्लेस के सारे मकानों का उनके मालिकों से अधिग्रहण कर लेती है और फिर इन्हें उन्हीं किराएदारों को दे देती है जो वहां बरसों से रहते आए हैं. तो पहला कदम हुआ अधिग्रहण और दूसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह का अधिग्रहण इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा या नहीं? Most certainly. यदि ऐसा है तो मैं इसके खिलाफ हूं. मैं हर उस अधिग्रहण के पक्ष में हूं जहां पब्लिक यूज का मतलब हो सरकार के काम के लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन. पर एक मालिक से लेकर दूसरे मालिक को दे देने के लिए किसी की प्रॉपर्टी या घर हथिया लेना, ये मैं इसके खिलाफ हूं. May I tell you, there is a slight change in the language here. The words just compensation have been used instead of the words compensation. By using the words just compensation, you have made it open to question in a court of law. In that case, we will drop the word just. It's just a matter of adjustment. Half a loaf is better than no loaf. अब बारी थी सदन में बहस की. जमींदारों ने ठान लिया था कि कबहू न छोड़ें खेत और बदलाववादी लगे हुए थे सैकड़ों सालों से जमी हुई इस व्यवस्था को तोड़ने में. सर, this compensation clause does not cover जमींदारी alone. इसमें पूरे मुल्क में फैली हर तरह की चल और अचल संपत्ति की बात भी शामिल है और हो सकता है आगे चलकर देश के भले के लिए हमें छोटे किसानों की बटाई की काश्तकारी भी एक्वायर करनी पड़े. तो क्या आप उस दिन उन्हें जस्ट कंपनसेशन नहीं देंगे? अंत में वोट से पहले सरदार पटेल सारे प्रश्नों का जवाब देने खड़े हुए. The discussion on this question has gone on the wrong track. Those who took part in the debate assumed that this clause was intended for the purpose of acquiring zamindaris.
land will be required for many public purposes. Not only land, but so many other things may have to be acquired. And the state will acquire them after paying compensation and not expropriate them. That is the real meaning of this clause. I move this clause as moved by me to be passed. सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमि अधिग्रहण के सवाल पर प्रस्ताव पास हो गया, पर जमींदारी खत्म करने का मसला इतनी आसानी से हल होने वाला कहां था। जनाब सदर साहब, इन सवालों के जवाब के दो पहलू हैं। एक, द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, और दूसरा, द कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। यानी मिल्कियत में एक तरफ फर्द का और दूसरी तरफ पूरे समाज का हक। इस अमेंडमेंट में हमने इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने कई साल पहले यह फैसला किया था कि हिंदुस्तान से जमींदारी का रोग पूरी तरह खत्म कर देंगे, और जाहिर है हम इस वायदे को 100% निभाकर ही रहेंगे। Sir, I believe the communists, the socialists, and the supporters of this article would kill and eliminate the middle classes and the upper middle classes altogether. Whilst the communists would kill them by use of force and violence, the socialists would kill them, as apparently Professor K.T. Shah would do, by arguments, by speeches, and by theories. The sponsors of the present article would kill them by use of law. Sir, the question is, does zamindari property differ from other properties so as to receive this step-motherly treatment? All I want is to limit the payment of minimum compensation to 12 times. पहले वक्ता मैसूर के श्री एच सिद्धवीरप्पा ने एक संशोधन रखा कि प्रस्ताव में रैयतवारी का जिक्र भी होना चाहिए। As a matter of fact, a different set of land reform is required in the case of Rayatwari holdings. I am moving this amendment as a matter of caution and prudence. Mr. President, sir, in supporting Article 24 as moved by the Honorable Prime Minister, I hope that the amendment will further social progress of the teeming millions of the agricultural population of this country. I accord my wholehearted support to the proposition as put forward by the Honorable Prime Minister. जमींदारों की लॉबी के लोग अब तक सचमुच हिल चुके थे। महोदय, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि उत्पादों के बनाने के सिलसिले में समाजवाद का आना क्रमिक विकास का एक जरूरी हिस्सा है। यह तो होना ही है। मेरा झगड़ा केवल उन लोगों से है जो इस एवोल्यूशन को रेवोल्यूशन से लाना चाहते हैं। फर्ज करिए आज आपने चंद जमींदारों को खत्म कर दिया, फिर क्या होगा? फिर भी ज्यादातर जमीन और दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में रहेंगी। उन लोगों तक तो नहीं पहुंच जाएंगी जो हजारों बेचारे भूमिहीन हैं। महोदय, हमें सिर्फ ऐसे कानून बनाने और पास करने चाहिए जो सोसाइटी के हर तबके को सही, इंसाफ पसंद और बराबरी के लगे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रधानमंत्री थे और अपने प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव ला चुके थे, इसलिए सब उन्हें सुनने को बेताब थे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम संघ के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। हमारे यहां यही कोई 20 लाख के करीब तथाकथित जमींदार लोग हैं, जिनमें से 19 लाख को हम उनकी सालाना मालगुजारी का 28 गुना पैसा उनकी भूमि के बदले दे चुके हैं। कौन कहेगा कि यह मुआवजा कम है? जनाब सदर साहब, इनका कहना है कि अगर बटाईदारों ने 10 गुना किराया दिया तो ये उन्हें भूमिदार बना देंगे। मैं कहता हूं कोई भी इन लफ्जों के हेर फेर से बेवकूफ बनने वाला नहीं है। आखिर इसका मतलब ही क्या हुआ? फर्क ही क्या है भूमिदार और जमींदार में?
जमीन फारसी का लफ्ज है और भूमि संस्कृत का शब्द, और पंडित जी एक को हटाकर दूसरे को ला रहे हैं बस। ये और कुछ नहीं, लफ्जों का खेल है, लफ्फाजी है। ये भूमिदार और कोई नहीं, कल के जमींदार ही होंगे, और चंद जमींदारों के बदले हम बहुत से भूमिदारों को खड़ा कर देंगे बस। मौलाना हसरत मोहानी की सारी कोशिशों के बावजूद प्रस्ताव तो पास हो गया, और फिर खड़े हुए पंडित नेहरू और श्री के.एम. मुंशी अंतिम संभाषण के लिए। The next speaker is Pandit Jawaharlal Nehru. If you will permit, sir, my honorable colleague, Mr. Munshi, would reply. मद्रास, बिहार और यूपी के 3 बिल आज उदाहरण के रूप में देश के सामने हैं, और इन पर अमल होना भी शुरू हो चुका है। और हमारी किसान जनता इस संविधान के लागू होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाए, यह हम नहीं होने देंगे। जमीन का मसला इतना लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ था कि संविधान सभा के संसद में तब्दील होने के कुछ महीनों बाद ही नए गणराज्य की संसद को जमीन के सवाल पर ही पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। Now I shall proceed with the other article, the important one, namely Article 31. This article deals with the abolition of the zamindari system, with land laws and agrarian reform. If we do not make proper arrangements for the land, all our other schemes, whether they are about growing more food or anything else, may fail. Therefore, something in the shape of this amendment that I have suggested becomes necessary. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का विरोध करने खड़े हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कुछ ही महीनों में जनसंघ की नींव रखने वाले थे। There is only one party ruling India today. All the governments are under control of a centrally organized party. Why has not the center sat down and given some sort of formula saying this is the formula that every state should adopt in effecting land reforms with minor changes as local conditions may necessitate? Therefore, I would very earnestly suggest that a situation has not yet come when any change in Article 31 is called for. This parliament, again, is a provisional one. And it cannot be said to be reflecting the will of the people. It is highly improper to make fundamental changes in the constitution without making any reference to public opinion. श्रीमान जी, कई हाई कोर्ट्स ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को गैर कानूनी घोषित किया है। बिहार प्रांत में तो जमींदारी को ही कानूनी तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मुझे हैरानी होती है कि अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि आज इस प्रश्न पर जनमत कराया जाए कि जमींदारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस दिन भी फर्स्ट अमेंडमेंट को सबको समझाने और उसे सदन के तूफानी थपेड़ों से बचाकर किनारे लगाने का काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने। Now I come to clause 4 of the bill. This clause introduces a new article, 31A. The new article does not apply the acquisition of land. It applies to the acquisition of estates in land, which is a very different thing. The original article exempted compensation for the acquisition of zamindari rights. We are now dealing with exemption of discrimination. I do not see why Article 31 should now continue to operate when there is a law for the purpose of acquiring these estates. वक्त के साथ जमीन जायदाद की मिल्कियत को बुनियादी हकों से खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी भूमि और संपत्ति के कानूनों में कई बदलाव हुए हैं। जैसे 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए 80% गांव वालों की इजाजत लेना लाजमी कर दिया गया है।